So coming back to the next lecture of this our third chapter, that is nuclear models and forces. In the last period, if you remember, we have seen the most important article, that is the binding energy. And the binding energy we have defined that binding energy is nothing but it is the amount of energy required to separate the nucleus constituents, isn't it? That is called as the binding energy. Or the another definition of the binding energy which we have seen is the was amount of energy which required to make a nucleus with the help of two constituents, that is proton and neutrons. Our alternate definition of the binding energy we have already seen that the mass which get disappear at the formation of nucleus, the amount of mass which get disappear at the formation of nucleus, it is called as binding energy, isn't it? Getting please? After having seen this one, we have seen the dependence of binding energy. We have seen that the binding energy of any nucleus is depends upon the mass number, isn't it? We have derived that equation. For that one, we have taken the practical values, we have taken the different mass number, and we have calculated the binding energy per nucleon. And we have seen that graph, that in the beginning when the mass number is less, binding energy per nucleon increases very sharply, reaches to maximum, and then it starts decreasing. But this decreasing quite slow, that it looks that for the mass number or higher mass number, the binding energy per nucleon is almost constant, isn't it? And this result lead us to the conclusion that the binding energy of any nucleus is directly proportional to the mass number, that is capital A. This is the practical dependence of binding energy. Have you got this? Yesterday we have seen. Do you remember? Those who have joined just here today, particularly Rayan, you please try to understand. If you are having any difficulty, then you may please contact to me. I will explain once again for the newcomers. But this is our third chapter of BSc second year, paper number 8, modern physics and nuclear physics. Two chapter of the modern physics we have already completed, and these chapters are photoelectric effect, and another one is the X-rays. These two chapters we have already covered. Those who were absent in the lectures of these two chapters, that is photoelectric effect and X-ray, they are requested to contact me in a group, so that for them I will send them the separate link and I will try to cover that two chapters also. This is our third chapter that belongs from the nuclear physics section. Last time I have covered the introduction of the nuclear physics, that it is the branch of physics which deals with the study of property of nucleus. In addition to that one, we have seen an important article of the first of this particular chapter, that is binding energy. That binding energy is nothing but this term or this concept is associated with the nucleus of any atom. That element is made up of large number of atoms, and atom is made up of two constituents. One, it is the nucleus which is present in the center, and another part is the electrons which are revolving around the nucleus in a circular orbit, isn't it? Now electron, they take the part in the chemical reaction, that's why they are related with the chemist. But here in this particular section, we are not dealing with the electron which are revolving in a circular orbit around the nucleus, but we will focus
on the nucleus which is present in the center. हम किस पर concentrate करेंगे पूरे center में, पूरे स्टडी के दौरान? न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि एटम का सेंट्रल पार्ट है। और ये न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज, यही न्यूक्लियस का बिहेवियर, यही न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक जिस ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं, that branch of physics in which there is a study of properties and characteristics of nucleus, it is called as nuclear physics. Those who are having their video on are requested to off the video. Please, audio and video should be off. For all of you, there is the instructions is common that at the time of teaching, your audio and video should be off. And when I ask the question, when I ask you to unmute yourself, then you are requested to unmute your mic and say yes, no, or your question, whatever it may be. So coming back to the chapter, as we have seen that binding energy is nothing but amount of energy required to split the nucleus into its constituents. Nucleus किसका बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है, isn't it? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन या सब प्रोटॉन और सब न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस न्यूक्लियस को तोड़ने के वास्ते, इस न्यूक्लियस को स्प्लिट करने के वास्ते जो एनर्जी लगेगी, the amount of energy required to split the nucleus into its constituents. Constituents means proton and neutrons. In Urdu you are called this as a ajza, constituents. एंड उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करना और या न्यूक्लियस को तोड़ देना, इसके वास्ते जो एनर्जी जो लगेगी, that amount of energy, it is called as the binding energy. The alternate definition of the binding energy I have also explained in the last period, that suppose a proton is here, a neutron is there. Now I have to take this proton and neutrons and combine together to form a nucleus. That means in order to bring this proton and neutrons together, the amount of energy required to bring these two together, because they are at some distance, दोनों को करीब लाने के वास्ते जो एनर्जी, जो वक्त काम लगेगा, that amount of energy required to make a nucleus or to combine a proton and neutron to form a nucleus, it is called as the binding energy. One more thing I have explained in that case, suppose a proton is having the mass 1, neutron is having the mass suppose 1.5. When one proton and one neutron combines together, what should be the mass of nucleus, please? Particularly, Ryan, tell me what should be the mass? एक प्रोटॉन की मास 1 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। एक न्यूट्रॉन की मास समझो 1.5 AMU है। कितने हो गए? एक इसकी, 1.5 इसकी, 2.5 AMU हो गया। इसको दोनों को मिला लेके आ रहे, करीब एक न्यूक्लियस बना रहे। तो न्यूक्लियस की मास कितनी होनी चाहिए? Nucleus की mass should be equal to mass of one proton plus mass of one neutron. Isn't it? Neutron. That mass of the nucleus should be equal to 2.5 AMU. But actually it is found that mass of the nucleus is not exactly 2.5 AMU, but it is somewhat less. यानी कि होना कितनी चाहिए थी? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को मिला के जब एक न्यूक्लियस बना है, तो न्यूक्लियस की मास एक प्रोटॉन की मास जमा एक न्यूट्रॉन की मास के बराबर होनी चाहिए। बट इट वाज ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकली that mass of the nucleus is not equal to the sum of mass of its constituent, but mass of the nucleus is somewhat less that of total or sum of their constituents. Therefore, at the combination of the constituent, certain mass is just disappear. इसका ये मतलब हुआ कि न्यूक्लियस की मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मास की जमा से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूएंट जमा करे, जब आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन जमा करे, तो उस वक्त थोड़ी सी मास क्या हो गई? डिसअपियर हो गई। मास गई कहाँ? डिसअपियर हो गई। डिसअपियर हुई बोले तो कहीं नहीं जाती, but that amount of mass of this proton and neutron which get disappear is nothing but it get converted into energy, and that energy it is called as the binding energy. That means the mass defect which was observed at the time of combination of proton and neutron to form a nucleus, that mass defect or that loss of mass is nothing but it is called as the binding energy. All of you getting, please? All of you are getting? Yes, sir. That is called as the binding energy. Yes, sir. Yes. Coming back to the next article which I have already explained, dependence of binding energy. बाबा ये बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती किस बात? अब इतनी बात तो आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि
binding energy, this term is associated with the nucleus. जब भी लफ्ज बाइंडिंग एनर्जी आएगा आपके जहन में इतना आना कि ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। वैसे नाम में से समझ जाता, बाइंड बंधना, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियंस टुगेदर। न्यूक्लियंस बोले तो कौन जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखने के वास्ते लगने वाली एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। So whenever there is a discussion, whenever the word binding energy is oriented before you, you should understand that this term is usually related with the nucleus. Now if we consider this binding energy is depend on which factor, so it is observed that binding energy is, see here, कैसे डिपेंड करेगी बाइंडिंग एनर्जी? भाई एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसको कंबाइन करें, isn't it? एक प्रोटॉन की मास जो है तो 1.1 AMU, एक न्यूट्रॉन की मास सपोज 1.5 AMU, दोनों को कंबाइन करें। मैंने बोला कि 2.5 AMU मास नहीं बल्कि 2.5 बाइंडिंग एनर्जी निकली, मास डिफेक्ट निकला। अब समझो दो, एक प्रोटॉन के वजह समझो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, उनको कंबाइन करें, उस वक्त कितनी मास लॉस होंगी जी? 0.5 होंगी कि ज्यादा होंगी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू प्लीज, पर्टिकुलरली आवर बॉयज। ज्यादा होंगी। यस, ज्यादा होंगी। मोर। यस, बोलिए, अनम्यूट कीजिए आप, पर्टिकुलरली बॉयज से मैं सुनना चाहूंगा। Isn't it? If the number of protons and neutrons is increases, whether the loss of mass will be more or less? Please tell me. More. Yes, loss of mass is more. When the loss of mass is more, then binding energy is less or more? More. More. That means as the number of protons and neutrons increases, that means binding energy increases, isn't it? Are you agree with my statement? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ गई, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। Are you agree with my statement please? That means प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ी बोले तो किसको बोलते हैं जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? मास नंबर A, which is denoted by the symbol A, capital A. तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा बोल सकता कि बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A? Are you agree with my statement? And this we have seen by this graph yesterday. If you remember this graph, you found that we have taken the large of mass number starting from 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 150, 200 and so on. That means along x-axis we have taken the mass number, isn't it? That means different nuclei, यानी कि अलग अलग atomic number वाले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, फेरस, all these things we have taken along x-axis. We have calculated the binding energy per nucleon, and that value we have taken along the y-axis. Can you see my cursor please? This one. And we have plot a graph, and in the graph we have seen also, जो भी मैंने एक theoretical explain किया कि number of neutrons और proton बढ़ गए तो कैसे binding energy बढ़ जाती. We have also seen practically that the binding energy per nucleon increases very sharply when the mass number is less, and it is reaches to maximum and then start decreasing, but this decrease is quite slow, that it looks that it is particularly a constant. It is particularly a constant. And that means for this particular area, if I generalize it, I can tell that binding energy per nucleons is equal to constant. ये इतना हिस्सा जो है almost ऐसा सीधा दिखना, यानी कि डिक्रीज जो है तो क्वाइट स्लो है, ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू है। यानी कि इतने हिस्से को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है तो क्या होती जा रही? कांस्टेंट होती चली जा रही। यानी कि I can make this statement or I can conclude the result after having interpretation of this particular graph that binding energy per nucleon, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोले तो क्या? मिसाल के तौर पर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, या समझो दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो उसके अंदर के एक न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कंबाइनली क्या कहा जाएगा? वो न्यूक्लियन। रिमेंबर दिस थिंग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। और ये कौन है? न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। उर्दू में अगर बोले तो ये अज्जा है। तो ये दोनों को मिलके कंबाइनली क्या लफ्ज है?
न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियन के अंदर रहने वाले पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स। तो एक न्यूक्लियॉन को निकालने के वास्ते, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को तोड़ने के वास्ते जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी per nucleon. So that binding energy per nucleon from the experimental result we found to be almost constant. So from the interpretation of this graph, can I make this statement binding energy divided by number of nucleons, यानी कि जिसको टोटल को क्या बोलते हैं, binding energy per nucleon is equal to constant. Can I make this conclusion please? Boys particularly those who were absent in the last period are I am requesting them. Can I make this statement? मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? Binding energy is equal, binding energy divided number of nucleons is equal to constant. Rayan, please. Are you agree? Yes, sir. Yes, that means it is constant. ये फार्मूला जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, मैं उसको ऐसा लिख सकता है क्या? Binding energy is equal to constant into number of nucleons. ये जो बटे का है इसको इधर ले लिए, जो डिनोमिनेटर में है इधर आते वक्त न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो दिस फार्मूला can I write like this? Binding energy is equals to constant into number of nucleons. Can I write like this? If it is so, constant तो constant है, number of nucleons बोले तो क्या जी? Please unmute your, keep yourself unmute please. Rihan, Mahidia, all these things, those who were absent. Number of nucleon बोले तो क्या? What is this? Proton or neutrons. Yes, यानी कि mass number. Number of protons and neutrons. That is, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हमारे पास? मास नंबर. किसी भी न्यूक्लियस के मास नंबर को कैसे डिनोट कर? एटॉमिक नंबर, मास नंबर सुने होंगे आपने. एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर. उसको कैसे डिनोट करते हैं? Z से. अभी और आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह. और दोनों को मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि कार्बन 612 सुने क्या कभी ये एलिमेंट आपने? कार्बन 612 क्या मतलब है? Yes. कार्बन 612 मतलब क्या? कार्बन ये एलिमेंट है, 6 उसका एटॉमिक नंबर है और 12 उसका Atomic mass number. मास नंबर है. एम ए करेक्ट? यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ रहता सिर के ऊपर, जिसको के सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो जो लिखा हुआ रहता वो मास नंबर डिनोट करता. नीचे जो लिखा हुआ रहता पैर के पास, जिसको के सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो Z से डिनोट किया जाता है. तो यहाँ पर मास नंबर A से जो डिनोट किया जा रहा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस. यानी कि मैं ये नतीजा यहाँ से निकालता कि बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? व्हाट इज दिस? Mass number. Mass number. That means binding energy is depend upon the mass number. This is my practical interpretation या practical value regarding the dependence of binding energy. Are you agree? यानी कि प्रैक्टिकली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर को प्रोपोर्शनल रहती है. Now, after having seen the practical dependence of the binding energy, let me explain theoretical expectation regarding the dependence of binding energy. Now coming back, क्या theoretical क्या सोचेंगे? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते. Am I correct? Are you agree? Now between this proton and neutron there is a interaction. भाई न्यूक्लियस बना क्यों? कि एक प्रोटॉन और एक न्यूक्लियन के दरमियान इंटरेक्शन था बोल के आके एक न्यूक्लियस बना ना. भाई दोनों के दरमियान इंटरेक्शन था. हम इंटरेक्शन बोलेंगे, अट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन बोले तो ये अट्रैक्शन भी रहता और रिपल्शन भी रहता. उसको कंबाइन बोलते हैं इंटरेक्शन, और अट्रैक्शन बोलते खाली खींचना. यहाँ क्या बोल रहे? इंटरेक्शन. जब एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसका बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है. तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान क्या है जी? इंटरेक्शन है. ये दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होने की वजह से न्यूक्लियस बना हुआ है. तो मिसाल के तौर पर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इंटरेक्शन किसके किसके दरमियान रहेगा? प्लीज टेल मी बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ. देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन फर्स्ट प्रोटॉन एंड फर्स्ट न्यूट्रॉन. एम आई करेक्ट? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Rayan, please unmute. Girls, are you getting me please? यस सर. यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होगा.
इंटरेक्शन रहेगा। यानी कितने इंटरेक्टिंग पेयर, एक जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो इंटरेक्टिंग पेयर किसके किसके दरमियान बना, एक इंटरेक्टिंग पेयर बना, interaction between first proton and first neutron. Suppose two particles are there, then there is a particle between 2 and 3. Then suppose 3 particles are present in the nucleus. 3 पार्टिकल है, किसके किसके दरमियान इंटरेक्शन रहेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल 1 and 2. एग्री? केयरफुली सुन लीजिएगा. ऑल ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. ऑल ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. समझ रहे हैं कि आपको दो पार्टिकल रहे तो पहले के दूसरे के दरमियान इंटरेक्शन, दूसरे और पहले के दरमियान इंटरेक्शन बराबर है. 3 रहे तो पहले के दूसरे के दरमियान, दूसरे के तीसरे के दरमियान, पहले के तीसरे के दरमियान एंड सो ऑन. समझ में आया क्या आपको? भाई न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टनर है, जितने भी पार्टिकल है, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते बोल रहे हूं. पहला दूसरे से इंटरेक्ट करता, पहला तीसरे से इंटरेक्ट करता, दूसरा पहले से इंटरेक्ट करता, दूसरा तीसरे से इंटरेक्ट करता. समझो 4 है, 1 2 3 4 पार्टिकल है अंदर, चाहे वो प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो. इससे जोड़िया कैसे बनेंगे, पहला दूसरे से, पहला तीसरे से, पहला चौथे से, दूसरा पहले से, दूसरा तीसरे से, दूसरा चौथे से. समझ में ही बात? वैसे तीसरा, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरेक्टिंग पेयर बढ़ेंगे कि नहीं जी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. रैयान, बॉयज सेक्शन पर्टिकुलरली. आर यू एग्री? Are you agreeing with my statement? Please tell me. Please tell me, boys. No, sir. समझ में आ रही बात? एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर 2 पार्टिकल है. तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 2 पार्टिकल है तो दोनों के दरमियान इंटरेक्शन रहेगा, पहला दूसरे से इंटरेक्ट करेगा. कितने इंटरेक्टिंग पेयर बने? एक. 3 पार्टिकल है तो पहला दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, पहला तीसरे से इंटरेक्ट करेगा. जोड़े बढ़ गए कि नहीं? पेयर कितने हो गए? पहले एक था, कितने बढ़े? और एक बढ़ गई. समझो 4 पार्टिकल है, 1 2 3 4 ने मिलके एक न्यूक्लियस बनाए. तो पहले वाला कितने से इंटरेक्ट करेगा? दूसरे से, तीसरे से, चौथे से. बढ़ गए कि नहीं इंटरेक्टिंग पेयर? यस. यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे इंटरेक्टिंग पेयर बढ़ेंगे कि नहीं? कि if the number of particles in the nucleus increases, interacting pair increases. समझ में आ गई बात? एक और चीज समझ लीजिए, हर एक इंटरेक्टिंग पेयर अपने साथ कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी रखती. समझो पहला दूसरे के साथ जो इंटरेक्टिंग पेयर बनाया उसकी एनर्जी समझो 1 एटॉमिक मास यूनिट. एक न्यूक्लियस है उसके अंदर एक ही पेयर है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी रहेंगी? 1 एटॉमिक मास यूनिट. क्योंकि पहले और दूसरे के दरमियान जो इंटरेक्शन इंटरेक्टिंग पेयर है वो अपने साथ कितनी एनर्जी रखती? कुछ तो भी बाइंडिंग एनर्जी रखती. मिसाल के तौर पर AMU, 1 MU. दूसरा 2 अगर है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेंगी कि कम होंगी जी? इंटरेक्टिंग पेयर बढ़ गए. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर इंटरेक्टिंग पेयर अपने साथ कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी रखता. अब पहले एक इंटरेक्टिंग पेयर था, 1 एटॉमिक मास यूनिट बाइंडिंग एनर्जी थी. अब 2 इंटरेक्टिंग पेयर आ गए तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेंगी कि कम होंगी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. बढ़ेंगी. बढ़ेंगी. यस, दैट मींस एज द नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पेयर इंक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस. ये थ्योरेटिकल बात चल रही. समझ में आई बात आपको? अब अगर हम ये फर्ज करके चलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर का हर एक पार्टिकल, हर एक न्यूक्लियर अपने दूसरे के साथ इंटरेक्टिंग बनाता है, तो इसका मतलब जब मैंने बोला कि पहला दूसरे से, पहला तीसरे से, पहला चौथे से, दूसरा पहले से, दूसरा तीसरे से, दूसरा चौथे से, मतलब एक इंटरेक्टिंग पेयर कितने मर्तबा गिनी जा रही है? यानी कितने इंटरेक्टिंग पेयर बन रहे हैं? अगर 3 पार्टिकल रहे तो पहला दूसरे से, पहला तीसरे से, मतलब टोटल पार्टिकल का एक कम. बराबर है क्या? यस. यानी कि अगर 3 पार्टिकल है तो इंटरेक्टिंग पेयर कितने बन रहे? 2. 4 पार्टिकल है तो इंटरेक्टिंग पेयर कितने बन रहे? 3. यस. अगर समझो A नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, A यानी कि मास नंबर, तो इंटरेक्टिंग पेयर कितने बनेंगे?
ए नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5, आपने बोला ना 2 रहा तो 1 बनता, 3 रहा तो 2 बनते, 4 रहा तो 1 बनता, मैं बोला 1 2 3 4 5 ए नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। तो टोटल इंटरेक्टिंग पेयर कितने बनेंगे एक न्यूक्लियस में? कैन यू सी माय कर्सर? एक वो जितने मास नंबर है उससे एक कम A बनेगा। -1. A minus 1 is the total number of interacting pairs will be formed in a nucleus which has mass number capital A. Agree? Therefore, A nucleus form, लेकिन कितने न्यूक्लियस है टोटल? A है। जब एक जो है तो A minus 1 बनेगा, तो टोटल कितने इंटरेक्टिंग पेयर बनेंगे जी उस न्यूक्लियस में? A into A minus 1. Can you understand this term? बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? All of you please unmute yourself. All of you. Agree? Yes, sir. एक बनाता A minus 1. Yes, sir. तो टोटल कितने बनेंगे जी? A into A -1. A minus 1 इंटरेक्टिंग पेयर विल बी फॉर्म। लेकिन अभी जब हम बोल रहे थे इंटरेक्टिंग पेयर पहला दूसरे से, बाद में दूसरे के वक्त गए तो क्या बोले? दूसरा पहले से। पहला दूसरे से या दूसरा पहले से बोले तो ये इंटरेक्टिंग पेयर एक हुए के दो हुए जी? अपन बोले पहले की जोड़ी दूसरे से, बाद में थोड़ी देर के बाद बोले दूसरे की जोड़ी पहले से, तो एक जोड़ी को कितने वक्त गिन रहे हैं अपन? 2 times. 2 टाइम्स। एम ए करेक्ट? एक ही बात हुई, यानी कि जितने इंटरेक्टिंग पेयर हमने बोले ऊपर A इंटू A माइनस 1, एग्जैक्ट में एक्चुअली कितने इंटरेक्टिंग पेयर मिलेंगे जी? फिर उसके आधे, A इंटू A माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। एम ए करेक्ट? 2. So therefore, for Yes, a sir. nucleus having the mass number capital A, total interacting pair form will be A into A minus divided by 2. Are you agree with this formula, please? All of you, please unmute yourself, particularly boys. Arshad, Kashif, Rayyan, please unmute yourself. बराबर बोर्ड इतना समझ में आया कि आपके रिपीट करूं? रिपीट करूं क्या? No, sir. समझ में आया कि इतने इंटरेक्टिंग पेयर बनेंगे A into A minus divided by 2? Yes. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि बाइंडिंग एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल है? टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पेयर को प्रोपोर्शनल है। एक बना तो एक, दो बने तो दो। तो फिर मैं ऐसा बोलूं क्या कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कितने इंटरेक्टिंग पेयर बने? A into A minus 1 डिवाइडेड बाय 2। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल हुई? A into A minus डिवाइडेड बाय 2। एम ए करेक्ट? अब अगर मैं ये फार्मूला अगर मैं जरब तकसीम कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा? ये ब्रैकेट अगर मैं खोलूं तो क्या बनेगा? ए अंदर ले गया तो ए स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ए क्या है जी? मास नंबर, जो बहुत ज्यादा रहता, और उसके कंपैरिजन में 1/2 जो छोटा रहता। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलता जी यहाँ से? ए स्क्वायर माइनस ए बाय 2। लेकिन ए स्क्वायर ए बाय 2 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो A by 2 मैं निगलेक्ट कर देता हूँ 1/2। खाली प्योरली क्या बचता फिर यहाँ से? क्या बचा? ये क्या है? व्हाट इज दिस? A square. बराबर है? समझ में आया आपको? A square. सबको समझ में आया? हर एक अनम्यूट करके बोलिए, समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ, अब जिन्होंने बोले दूसरे बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी फिर किसको प्रोपोर्शनल हुई जी? बाइंडिंग एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल बोलूं मैं? A square. A square. स्क्वायर। यानी कि theoretically expectation regarding the dependence of binding energy lead us to the conclusion that binding energy is directly proportional to A square. am I correct? प्रैक्टिकली क्या निकाले थे थोड़ी देर पहले कि बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू A। अब ये दोनों एक जैसे आए क्या जी? देयर इज ए कंट्रास्ट, तजाद आ गया ना। थ्योरी बोल रही कि बाइंडिंग एनर्जी A स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, प्रैक्टिकल बोल रहा कि बाइंडिंग एनर्जी A को प्रोपोर्शनल है। दोनों थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सेम है कि अलग अलग है? प्लीज टेल मी। अलग है सर। अलग है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट आ गया, तजाद आ गया इनके दरमियान। एम ए करेक्ट? दैट मींस रिगार्डिंग द डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट, इजंट इट? थ्योरी बोलती है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है तो मास नंबर के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, और प्रैक्टिकल बोलता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है तो मास को प्रोपोर्शनल है।
दोनों तो एट ए टाइम सही हो नहीं सकते, तेरी भी सही मेरी भी सही, ऐसा होगा क्या कभी? बस दोनों में इसको एक ही सही रहेगा ना। अभी तो फिजिक्स है, थ्योरी है, साइंस है, एट ए टाइम दो एक चीज के ताल्लुक से दो नजरिए सही रह सकते क्या? पीरियड को आए या पीरियड को नहीं आए इतना सही रहेगा नहीं, आधा पीरियड को आया था मैं, आधा पीरियड को नहीं आया था, ऐसा जम सकता क्या? जैसे यहाँ जम रहा है अभी आपको ऑनलाइन चालू रख के जो है इधर उधर भी देख सकते हैं आप, ऑनलाइन में इतना मौका मिल रहा है आपको। लेकिन अगर थियोरेटिकल यानी कि फिजिकली प्रेजेंट रहते ऑफलाइन में, हाँ पीरियड को आए थे, आधे पीरियड को आए थे, आधे नहीं आए पीरियड को, ऐसा बोले जमता क्या? No, sir. That means there is a contrast regarding the dependence of binding energy. Theory is explaining us that binding energy is proportional to the square of mass number, and practically shows that binding energy is proportional to the mass only. And therefore, in order to avoid this contrast, in order to avoid this discrepancy regarding the dependence of binding energy, another term has come into existence, and that is called as saturation. That is called as saturation. Saturation किसको बोलते हैं? टर्म कभी सुनेगा जी तुमने? मैं एक्सप्लेन कर दो। अपन बोलते हैं कि D.Ed के लोगों का सैचुरेशन हो गया। क्या मतलब जी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू आर सीनियर मोस्ट स्टूडेंट। आप मुझे मालूम है कि इधर उधर की बात नहीं करेंगे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। सुनेगा कभी ये टर्म सैचुरेशन हो गया बोलते हैं? D.Ed वालों का सैचुरेशन हो गया। ऑल ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू प्लीज सुने अनम्यूट। सुने ना? जैसा इंजीनियरिंग वालों का बोलते हैं अपन, बहुत बच्चे इंजीनियरिंग कर दिए, उनका सैचुरेशन हो गया, भरे नहीं जा रही पोस्ट अब इंजीनियरों की, है क्या नहीं? क्या मतलब कि भाई एक जगह पर 40 लोगों को लेना था D.Ed वाले, 40 के 40 भर दिए, है क्या नहीं? Yes. 41वीं जगह बैठती क्या आप? नहीं। That is, तो हम No, क्या sir. सैचुरेशन होगा? मिसाल के तौर पर फिजिक्स डिपार्टमेंट है मिलिया कॉलेज का, 3 पोस्ट बैठते हैं यहाँ पर, 3 लेक्चरर बैठते हैं, मैं करेक्ट? चौथा लाके Yes, बिठाने sir. का है, बैठेगा क्या जी? No. क्या बोलेगा? उसका सेंटेंस क्या रहेगा? अरे फिजिक्स का सैचुरेशन हो गया मिलिया में, क्या बोलेगा वो? फिजिक्स का सैचुरेशन होगा। हो गया। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन, यानी कोई चीज का फुल हो जाना या आम अल्फाज में भर जाना, और अब चौथा पार्टनर उसमें एडजस्ट नहीं होना या अगला पार्टनर उसके अंदर एडजस्ट नहीं होना, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। अब आप बोलेंगे इधर फिजिक्स और मिलिया में इधर कैसे चले गए आप न्यूक्लियर फिजिक्स से? आई विल एक्सप्लेन। हैव यू गॉट द आइडिया समव्हाट? अभी हम जब थियोरेटिकल डिपेंडेंस देख रहे थे बाइंडिंग एनर्जी का, तो हमने क्या फर्ज किया था जी कि न्यूक्लियस के अंदर का हर एक पार्टिकल दूसरे के साथ क्या करता, बोला मैंने? क्या बनाया आपने? जी बोलिए रियान, बोलिए बेटा। इंटरेक्शन। इंटरैक्ट करता, यानी कि हर एक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर का, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हर दूसरे पार्टिकल से इंटरैक्ट करता। इसमें मैंने बोला क्या कि भाई पहले वाला खाली दूसरे से मिलता, तीसरे से मिलता, चौथे से उसको लेना देना नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने क्या बोला? अपन ने क्या एक्सप्लेन करे अभी कि ईच एंड एवरी पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस form the interaction या form the interacting pair which all the particles which are present inside the nucleus, isn't it? But अब अगर उस बुनियाद के ऊपर गए अपन कि हर एक के साथ इंटरेक्टिंग पेयर फॉर्म करता बोल के गए, तो हमको रिजल्ट क्या मिला? प्रैक्टिकल के साथ सेम मिला कि अलग मिला जी? रिजल्ट अलग मिला। यानी कि हमने जो फर्ज करके चले थे कि पार्टिकल हर एक के साथ इंटरेक्टिंग पेयर करता, वो सही नहीं है। इसका मतलब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की मैं आपको मिसाल देता हूं। हाइड्रोजन क्या बनाते जी? अट्रैक्शन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम इज सैचुरेटेड ओनली फॉर टू हाइड्रोजन एटम। हमेशा आपको क्या मिलता थी? H2 मिलता। पानी में क्या है? H2O। H3O देखेगा कभी तुमने? सुने क्या कभी केमिस्ट्री में H3O? वॉइस पर्टिकुलर। यानी कि हाइड्रोजन कितनों के वास्ते सैचुरेटेड है? कितने पार्टनर, कितने एटम रह सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर? मैक्सिमम 2. तीसरा ऐड होता है क्या जी उसमें? No.
That means the attraction or interaction of the hydrogen atom is saturated only for 2 hydrogen Two. atoms. Third one is not possible. Third one is not possible. Just 3 is not possible. That means this idea, kaun sa idea? That interaction is limited only for few one. It is called as saturation. कौन सा आइडिया मैं सैचुरेशन की आपको डेफिनेशन देता हूं. The idea of interaction of the nucleons with limited number of nucleons. सबके साथ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. नहीं, सबके साथ नहीं, बल्कि किसके साथ? किसके साथ? कुछ लिमिटेड के साथ. यानी पहले वाला नंबर पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट सबके साथ इंटरेक्शन नहीं करता, बल्कि किसके साथ करता? खाली कुछ लिमिटेड के साथ करता. ये जो आइडिया बोल रहे हैं ना हम, दिस आइडिया ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियन with some limited number of nucleon inside the nucleus is called as saturation. Is called as what? Saturation. समझ में आया क्या? Saturation. समझ में आया क्या? बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए यस या नो. तो मैं आगे चलूं. Yes, sir. आया बॉयज particularly? Yes, sir. Yes. That means this idea lead us to the conclusion that nucleon present inside the nucleus interact with limited number of nucleon. But limited कौन? अब इतना तो समझ में आ गया कि जब लिमिटेड इंटरेक्टिंग पेयर बनेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी भी किसको प्रोपोर्शनल रहेंगी? लिमिटेड बाइंडिंग. क्योंकि अपने पहले ही बोले कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल रहती पेयर को. जितने इंटरेक्टिंग पेयर बनेंगे, ज्यादा बने तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, कम बने तो बाइंडिंग एनर्जी कम. अब पहले बोल रहे थे कि 40 बन रहे, अब लिमिटेड करके समझो 25 हो गए, तो बाइंडिंग एनर्जी भी कम हुई क्या बढ़ी जी? अब प्लीज बढ़ी क्या? कम हो गई. समझ में आया? Decrease. अब मुझे ये बोलिए, मैंने अभी आपको एक लफ्ज इस्तेमाल करा कि न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियन लिमिटेड के साथ इंटरेक्शन करता, बोला मैं लिमिटेड के साथ. अब आपको सवाल आता होगा कि लिमिटेड कौन? लिमिटेड कौन है क्या? नहीं. तो बात ये समझ में आई कि नंबर 1 न्यूक्लियन मिसाल के तौर पर उन्हीं लोगों के साथ मतलब उन्हीं न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्शन करता जो उसके करीब है. मिसाल के तौर पर नंबर 1 विल इंटरेक्ट विद नंबर 2, नंबर 4. अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है, गोल है. हम अभी और भी देखेंगे स्फेरिकल शक्ल का है. नंबर 1 जब जहां न्यूक्लियन रहेगा, उन्हें अपने करीब के जो 2, 4, 5 रहेंगे उनके साथ इंटरेक्शन करेगा. जो उससे दूर है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा क्या? No. नहीं करेगा. इसका मतलब हो गया कि इंटरेक्शन एक तो कौन से टाइप का है? सैचुरेटेड है, सबके साथ इंटरेक्शन फॉर्म नहीं होगा. और दूसरी बात कैसा रहे, रेंज कैसी है उसकी? लॉन्ग रेंज है क्या? रेंज कैसी है? No, sir. शॉर्ट रेंज. Short range. That means the saturation is there inside the nucleons regarding the interaction, and this saturation is of which type? शॉर्ट रेंज टाइप. समझ में आया कि आपको? हर एक अनम्यूट करके बोलिए जल्दी, वक्त हो रहा है. समझ में आया? Yes, sir. यस. यानी कि आपको Yes. समझ में आया Yes, sir. न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियन सबके Yes, sir. साथ इंटरेक्टिंग पेयर फॉर्म नहीं करता, कुछ के कम, कुछ के साथ लिमिटेड के साथ करता, और वो लिमिटेड भी वो है जो उससे करीब में है. यानी कि the interaction of the nucleon inside the nucleus is of saturated type, and this saturation is of short range type. समझ में आई क्या बात? तो जब अगर ये शॉर्ट रेंज टाइप इंटरेक्शन है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये भी कितने फॉर्म होंगे जी? न्यूक्लियंस भी, इंटरेक्टिंग पेयर भी शॉर्ट फॉर्म होंगे, है कि नहीं? इसका मतलब वो जो a into a-1 डिवाइडेड बाय 2 बोले थे, उसकी अब जरूरत ही नहीं. दैट मींस बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. एम आई करेक्ट? Yes, sir. ए स्क्वायर अपॉन ए, -1 का सवाल ही नहीं. लिमिटेड था, ए स्क्वायर में का 1 चले गया तो बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. ये कौन बोल रहा? आप थ्योरी बोल रही. और प्रैक्टिकल ने पहले क्या बोला? बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू
मास नंबर। अब दोनों सेम हो गए कि नहीं? हमारे को जो कंट्रास्ट या जो तजाद मिला था थ्योरी और प्रैक्टिकल में, अब सॉल्व हो गया कि नहीं? वो Yes, sir. काय की वजह से सॉल्व हुआ? कौन सी टर्म आई बोल के, कौन सा नया कंसेप्ट आया बोल के? क्या है ये? Saturation. यानी कि सैचुरेशन लीड्स अस टू रिमूव द कंट्रास्ट बिटवीन द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब ये सैचुरेशन को पकड़ के अब हम ये चले कि नहीं बाबा, इंटरेक्शन सबके साथ नहीं है, इंटरेक्शन लिमिटेड के साथ है, उसमें भी उसके साथ है जो करीब में है, लिहाजा जो इतने बड़े बाइंडिंग इंटरेक्टिंग पेयर फॉर्म हो रहे थे a into a minus 1 और डिवाइडेड बाय 2a square minus a square by 2, ऑल दिस थिंग की जरूरत नहीं है, लिहाजा बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, इजंट इट? ये अब थ्योरी भी बता रही, प्रैक्टिकल ने तो पहले बता दिया ग्राफ से, लिहाजा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर इन गुड एग्रीमेंट विथ ईच अदर। दोनों अब एक दूसरे के बराबर हो गए कि नहीं जी? तो अब हम Yes, क्या sir. नतीजे पे पहुंचे? Yes, sir. कि बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। समझ में आई की बात आपको यहां तक? ऑल ऑफ यू प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. After having seen this one, some more properties I would like to explain. Nuclear properties. क्या है न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है? आप ही बोलिए अब अनम्यूट करके। पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव? Positive. Positive. क्यों? Positive. इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस बना हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहते, इस वास्ते द न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलवेज प्लस ई टाइम्स जेड ऑफ प्रोटॉन। दैट मींस जितने भी जेड नंबर रहेंगे उनका, जितना भी जेड रहेंगे उनके उत्तर का प्लस ई चार्ज जो रहेगा वो उसके ऊपर चार्ज रहता। प्लस, समझ में आया? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इज पॉजिटिव। समझ में आया ऑल ऑफ यू? एक और चीज, Yes, sir. ड्यूटेरियम सुने कि आपने? ड्यूटेरियम, Yes, sir. Yes, sir. इस ड्यूटेरियम sir. एक्चुअल में इसको बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। इट हैज ए न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। जिसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन रहता, वो न्यूक्लियस क्या कहलाता? ड्यूटेरियम कहलाता है, या ड्यूटेरा, हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं उसको। एक है ट्रिटियम। इट हैज 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन। उसको क्या बोलते हैं? कितने है जी? 2 और 1, 2 और 1, 3। 3. तो इट इज कॉल्ड एज ट्रिटियम। ऐसा हाइड्रोजन जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, इट इज कॉल्ड एज ट्रिटियम। द न्यूक्लिया ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम एटम्स आर कॉल्ड एज ड्यूटेरॉन्स एंड ट्रिटॉन्स। ऐसे न्यूक्लियस जिसके अंदर ये ऐसा है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, या 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन है, उनको क्या नाम से पुकारते हैं हम? ड्यूटेरियम को ड्यूटेरॉन्स और ट्रिटियम को ट्रिटॉन्स। याद रखिए। एक और चीज, एटॉमिक नंबर कैसे डिनोट करते हैं? अभी बताया था। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और एटॉमिक मास नंबर? A. एक और चीज है आइसोटोप, ये लफ्ज सुनेंगे जी कभी आपने? Yes, sir. यूरेनियम। यूरेनियम 92-235 ये भी यूरेनियम है। यूरेनियम 92-236 ये भी यूरेनियम है। तो यहाँ पर एक एटॉमिक, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन वहां से जाने के बाद जो बचता उसका इट इज कॉल्ड एज द आइसोटोप। यानी कि एटम विथ सेम जेड, यानी जिसका एटॉमिक नंबर नहीं बदलता बट डिफरेंट मास नंबर, इज कॉल्ड एज आइसोटोप। मतलब यूरेनियम 92-236 ये क्या हो गया? यूरेनियम हो गया। 92 उसका एटॉमिक नंबर, 236 उसका मास नंबर। समझ में आया क्या? प्लीज। एक है यूरेनियम 92-235, ये भी यूरेनियम ही है। इसमें क्या सेम है जी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। Atomic number. और क्या बदल गया? Atomic number. Atomic mass number. मास नंबर बदल गया। तो हम क्या बोलेंगे कि दूसरा जो है यूरेनियम 235, ये यूरेनियम 236 का क्या है? आइसोटोप। आप सुने होंगे 12वीं में आइसोटोप, आइसोबार। बॉयज पढ़े क्या? Yes, sir. यस। और एक चीज, न्यूक्लियस को कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं एक्स एन ए जेड। ए बोले तो एटॉमिक नंबर बताता, जेड उसका क्या बताता? ए एटॉमिक मास नंबर, जेड उसका एटॉमिक नंबर, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए मास नंबर यानी कि जेड प्लस एन, एक्स जो है तो केमिकल एलिमेंट। ईच न्यूक्लियर स्पेसिस विद ए गिवन जेड एंड ए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। एक ऐसा न्यूक्लियर जिसके अंदर जेड और ए रहता है उसको हम क्या नाम से पुकारेंगे?
न्यूक्लियस भी बोलते हैं या न्यूक्लियाइड। समझ में आ रही बात? जेड जो है क्या बताता, एटॉमिक नंबर जनरली कौन सी प्रॉपर्टी बताता उसकी, केमिकल एलिमेंट बताता। C12 C6 समझ जाते हैं हम, कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर जेड। यानी जनरली आपको पीरियोडिक टेबल में किसके हिसाब से देखते जी आप, पीरियोडिक टेबल किसके हिसाब से लगा हुआ है, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास नंबर के, केमिस्ट्री एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। नंबर के। हाइड्रोजन ऐसा है ना, लेफ्ट से शुरू होता, हाइड्रोजन से जो शुरू होता तो इधर जाता फिर तुम्हारे जो है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट तक, isn't it? That is nucleide. समझ में आया? न्यूक्लियाइड विद सेम न्यूट्रॉन नंबर and called as the isotone and same value is called as the isobar. समझ में आया क्या आपके? Have you got? समझ में आ रही बात आपके? Nucleide Yes, with sir. same neutron number Yes, sir. are called as isotones and same value of A are called as isobar. याद रखिए ये आइसोटोप आइसोबार आपको समझने के लिए। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में बोलेंगे कि एटॉमिक मासेस आर डिनोटेड बाय द सिंबल U, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कन्वर्जन याद रखिए। एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितने किलोग्राम, 1.6, ये याद रखने का, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं, 1.66054 into 10⁻27 kg ग्राम में, या अगर MeV में बोला तो कल भी बोला था, एक एटॉमिक मास यूनिट मसावी है कितने MeV, याद रखिए 931.49 या 5 MeV पर C²। प्रोटॉन P से डिनोट करते, उसकी रेस्ट एनर्जी इतनी रहती, चार्ज प्लस से रहता। मास कितनी है प्रोटॉन की, एक 1.0072, ये भी याद ही रखना पड़ेगा, इसको भी ड्राई करने की। स्पिन, उसकी स्पिन समझता ना, प्लस माइनस रोटेशन के और भी देखेंगे हम आगे। वैसे न्यूट्रॉन की मास इतनी, इलेक्ट्रॉन की मास इतनी। बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, क्या बोला था मैंने, ये दोनों किसके अंदर रहते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, रेयान काय में रहते हैं, न्यूक्लियस, और दोनों को मिलके क्या बोलते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, न्यूक्लियॉन्स। यस, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल दूसरे पार्टिकल के होते हैं, क्रैक्स भी बोलते हैं, लेकिन अमूमन ये न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। साइज न्यूक्लियस की कैसा रहता है कि न्यूक्लियस देखने में, आपने पढ़ के आए होंगे, इट इज स्फेरिकल इन नेचर। कौन बताया उसका नेचर स्फेरिकल रहता है बोल के, रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स मस्ट बी लेस देन 10⁻⁻40। एक तो ये स्फेरिकल रहता, और स्फेरिकल का रेडियस या इसको बोलेंगे डायमीटर कितना रहता, खुतर डायमीटर समझता ना, बमुश्किल कितना सेंटीमीटर, 10⁻⁻40 में, इतना छोटा रहता है। और न्यूक्लिया कैसी शक्ल के रहते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल शक्ल का रहता न्यूक्लियस, सेंटर में रहता, और उसका रेडियस बमुश्किल 10⁻14 मीटर रहता। पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल स्कैटर व्हेन दे प्रोजेक्टेड क्लोज टू द न्यूक्लियस। खास बात क्या है इन पार्टिकल्स की, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब जाते हैं उनकी स्कैटरिंग होती। It is obvious that whether the maximum interaction distance refers to the nuclear size, यानी कि जैसे जैसे जो है तो स्कैटरिंग, अब आपको न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का है, तो ऐसा तो कोई पैमाना नहीं है जैसे कंपास बॉक्स में आप जाके जो है तो रेडियस गिनेंगे उसका। एक एटम है समझो, उसका एक न्यूक्लियस है, उसका रेडियस निकालो बोले, ऐसा कोई पैमाना है क्या? कि कंपास बॉक्स में एक अपना रहता है ना, कंपास बॉक्स प्रकार जिसको बोलते हैं, उसको जाके गिनेंगे रेडियस। उसको इनडायरेक्ट तरीका है रेडियस निकालने का, और वो तरीका क्या है कि उसके करीब जो पार्टिकल जाके स्कैटर्ड जो होंगे, वो स्कैटरिंग एंगल से उसका रेडियस गिनते हैं। You just remember, it is not for you for practical, but you remember the radius of the nucleus can be determined by the scattering experiment. डायरेक्ट तो ऐसा है नहीं कि भाई देखो ये देखो भाई ये न्यूक्लियस है, इसको जो है तो ऐसा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज लगा के, अब मैं जैसा आपकी फूकनी है जो पूछते ना आपके रेजोनेंस ट्यूब, उसका रेडियस निकालो बोले तो तुम किसकी मदद से निकालते, प्रैक्टिकल में निकाले आपने फर्स्ट ईयर में, आता क्या वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से। लेकिन न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते क्या वर्नियर कैलिपर से? प्लीज ऑल ऑफ यू अनम्यूट एंड टेल मी, सब अनम्यूट करो अपने आप को, खाली निकाल सकते? नो सर। नो। तो फिर इसके वास्ते क्या तरीका है? हाँ यार, इसके वास्ते इनडायरेक्ट तरीका यह है कि वो उसके पास जो एटम जो पार्टिकल जाते हैं वो स्कैटर्ड होते, और स्कैटरिंग एंगल निकालते हम जो है तो एटॉमिक तरीके से, और वो स्कैटरिंग एंगल से फिर हम जो है तो उसका रेडियस और साइज निकालते। तो आपको मालूमात के लिए तौर पे बताया जा रहा कि इट इज ऑब्वियस दैट वेदर द मैक्सिमम इंटरेक्शन डिस्टेंस रिफर्स टू द न्यूक्लियर साइज, और वेदर द न्यूक्लियर फोर्स एक्सटेंड बियॉन्ड द न्यूक्लियर मैटर। The nuclear force is often called as
स्ट्रॉन्ग। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिलते हैं ना, ये जो अंदर बैठे हुए हैं ना, किसकी मदद से बैठे हुए? कौन जुड़ा के रखा है इनको? जो भी जुड़े गए, कुछ तो भी ताकत होंगी ना जो इसको जुड़ाए रखती है क्या नहीं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ के एक न्यूक्लियस बनाए तो ऐसे ही बैठे हुए होंगे क्या? कोई एक ताकत होंगी ना। No. तो वो जो ताकत है, Yes, वो sir. कुव्वत है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जुड़ाए रखती न्यूक्लियस के अंदर, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज assumed टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. And the nuclear force radius, it is approximately called as the mass radius or you may call it the charge radius also. साइज एंड शेप की अगर हम बात करें वैल्यू की शक्ल में, उसके लिए फार्मूला है रेडियस निकालने के लिए न्यूक्लियस का, r इज इक्वल टू r0 a रेज टू 1/3, जहां r0 एक कांस्टेंट वैल्यू है 1.2 into 10⁻15 मीटर, और रेडियस निकालने के वास्ते जो इकाई जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो कौन सी है जी? ये फेम्टोमीटर। क्या में गिनेंगे रेडियस? उमूमन फेम्टोमीटर में, और फेम्टोमीटर, एक फेम्टोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर? 10⁻15 मीटर। और फेम्टोमीटर को शॉर्ट में फर्मी भी बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट फर्मी ने ये यूनिट इजाद किया, इसलिए इसको फेम्टोमीटर बोलते हैं, और दैट यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मी। द लाइटेस्ट पार्टिकल, लाइट पार्टिकल, हेवी पार्टिकल बोले तो क्या जी? लाइट पार्टिकल बोले तो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जो जिनके मास नंबर कम है, कौन से? हाइड्रोजन, हेलियम, नियॉन, छोटे छोटे जिनके मास नंबर मुश्किल 30, 20, 20 के अंदर के, ये सब कौन से पार्टिकल कहलाते? कौन से न्यूक्लियाई कहलाते? ये लाइटेस्ट न्यूक्लियाई या लाइटर न्यूक्लियाई या लाइट न्यूक्लियाई। और जिनके मास नंबर ज्यादा है, किसके मास नंबर ज्यादा है जी पीरियोडिक टेबल में? एकदम दूर के, दूर मतलब कौन से? राइट साइड में यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, एस्ट्रोनशियम, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें या कभी डिपार्टमेंट में भी आए तो अपने लगा हुआ है, देखो पीरियोडिक टेबल, राइट साइड के जिनके एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा है वो कहलाते हेवियर न्यूक्लियाई, और जिनके एटॉमिक मास नंबर कम है जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में है, वो क्या कहलाते? वो क्या कहलाते प्लीज? Lightest. लाइटेस्ट या लाइट न्यूक्लियाई। उनके लिए उनकी डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला है रो ऑफ r इज इक्वल टू रो 0 अपॉन 1 प्लस e रेज टू r माइनस a अपॉन a, where r is the radius, a is the distance from the center and so on. This is formula just for derivation is not required. Theoretically अगर हम देखें ग्राफ प्लॉट करके न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द shape and size of the nucleus, then this is of this type. And the radius, it is spherical, लिहाजा उसका वैल्यूम, स्फेरिकल का वैल्यूम कैसे देते? v is equal to 4/3 pi r cube into a. अगर आपको बोले न्यूक्लियस का वैल्यूम निकालो या वॉल्यूम निकालो बोले तो क्या फार्मूले से निकालेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस कैसे शक्ल का है बोले अपने आप बीच, कौन सी शक्ल का है? Spherical. स्फेरिकल। Spherical. तो वॉल्यूम का फार्मूला है मैथमेटिक्स में 4/3 pi r cube into a, where a is the mass number. Nuclear mass density is 2.3 into 10⁻17 kg per cube. So this is the nuclear shape, spherical है, रेडियस 1.1 into 0.2 into 10⁻15 मीटर के आसपास है, स्फेरिकल शक्ल का रहता, सेंटर में रहता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर बनता, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर फोर्स। अब वो आगे जाके देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस है, फिलहाल क्या नाम से पुकारो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर बाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। अब ये कौन कौन से न्यूक्लियर फोर्सेस है इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। आई इन द लास्ट, समझ में आया सबको? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ विद इन 2 मिनट्स। Yes, sir. रज़ा, अरशद खान, रैयान, Yes, sir. बॉयज। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़े? कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल डिपेंडेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी वाज क्लियर। काय की वजह से? ड्यू टू द अराइवल ऑफ कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट आने से दोनों के दरमियान का कॉन्ट्रास्ट खत्म हुआ? Saturation. सैचुरेशन कैसा रहता बोले? कौन सा टाइप का रहता? लॉन्ग क्या शॉर्ट? Short. And size Short and range. of the nucleus we have also seen. So with this one we will stop the period. Thank you for joining me. Remaining thing inshallah we will see in the next period, day after tomorrow. Thank you. Have a nice time. Thank you. So may I stop here today?